Hello, once again we are here with a previous topic eye. I find some students facing problem in the making notes of the eye. So again in this video we will discuss some important points and parts of the eyes and the defects. See, this is the figure of eye, and the parts are the bulging part cornea, the space between the iris is pupil, this is lens, and this is suspensory ligament, this is retina, and this is the optic nerve. Now the important parts of the eyes, they are mentioned here, and we will discuss one by one of each part, and I will give you the notes on this topic. The first part of the eye is eye lens, and it is a convex lens of refractive index 1.437, and its focal length changes with the help of suspensory ligament, and it can be changed its focal length according to the requirement. The second part is retina. Retina is a very sensitive part for the light, and the images are formed on the retina, and the images are real and inverted. The next is yellow spot. Yellow spot is most sensitive part of the retina, and here the images are formed, and the images are brightest here. The brightest image is formed on retina, sorry, yellow spot. The next is blind spot. It is non-sensitive for light, and from here the nerves enter to the brain. The next one is ciliary muscles. Ciliary muscles, eye lens is fixed between the muscles, and its both radius of curvature can be changed by applying pressure on it through the ciliary muscle. लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बदला जा सकता है with the help of ciliary muscles. Means we can say that for the focal length smaller and larger, the ciliary muscles helps to change the focus of the lens. The next is power of accommodation. The purpose of the lens of human eye to form a real image on the retina, and in order to focus objects located at different distances, the focal length of lens of the eye changes by the muscles, and this ability of lens is called power of accommodation. That is, ability to see near point और नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, बट वी कैन एडजस्ट इट विदाउट चेंजिंग द प्लेस विद हेल्प ऑफ ciliary muscles, with the help of changing of focal length of the eye lens, and this ability of the lens is called power of accommodation. And very important is, when we look distant object, the eye is in relaxed. आँखें हमारी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होती है जब हम इनफाइनाइट देखते हैं, and its focal length is large. This is very important. Now what is the range of vision? Range of vision क्या है? For the normal and healthy eye, the range of vision is from 25 centimeter to infinite. 25 centimeter is the near point, and infinite is the far point. So range is from 25 to infinite. ये एक normal eye की range of vision है. Because when we bring the object closer to the eye, after certain distance close to the eye, we are feeling some strain on the eye, and we are not able to see the clear image. The image is blurred. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपनी आंखों के नज़दीक लाते हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद ऑब्जेक्ट हमको धुंधला दिखाई पड़ता है. तो जिस जगह पर हमको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आँख के नज़दीक का, वो पॉइंट कहलाता है नियर पॉइंट. एंड फॉर द हेल्दी एंड नॉर्मल आई इट इज़ 25 सेंटीमीटर. एंड व्हेन द आईज आर इन रिलैक्स स्टेट, वी सी द फार पॉइंट. तो normal eye can see the object clearly only if they are at distance greater than 25 centimeter, and it is called least distance of distinct vision. This is very important term, and this is the symbol of least distance, capital D. Now the next is persistence of vision. Persistence of vision is 1/10 second. That is, if time interval between two consecutive light pulses हमारी आंखों में एंटर कर रही हैं या रेटिना पर स्ट्राइक कर रही हैं, तो उनके बीच में
1/10 सेकेंड का अगर डिफरेंस है तो या इससे कम है, देन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम सेपरेटली, तो आँखें उसको बिल्कुल अलग अलग करके नहीं देख पाएंगी. इट विल बी अ कंटिन्यूएशन. दिस इज़ कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन. मीन्स जितनी देर तक हमारी आंखों में वो इमेज बनी रहती है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. नेक्स्ट इज बाइनोक्यूलर विजन. द सीइंग विद द टू आइज इज़ कॉल्ड बाइनोक्यूलर विजन. हम अपनी आँखों को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वी यूज़ द टू आइज एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ द फेस एंड दिस इज़ कॉल्ड बाइनोक्यूलर विजन. Some animals are there like cow, horses, dogs. They have the eyes not in front of the face, they have the eyes on the sides, and that is the monocular vision. But we have, the human have binocular vision. Means the seeing with the two eyes is called binocular vision. Next is resolving limit. The minimum angular displacement between the two objects so that they are just resolved is called resolving limit. कभी कभी अगर आप देखें कि दूर से अगर हम देखें तो हमें कोई लाइन दिखाई पड़ती है, बट इफ़ वी गो क्लोज टू दैट लाइन तो वी सी दैट द लाइन इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स. मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर के हम इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग देख पा रहे हैं. तो जहाँ तक हमारी आंखें किसी दो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देख सकती हैं, अलग अलग देख सकती हैं, वो हमारी आँखों का रिजॉल्विंग लिमिट होता है. Means the minimum angular displacement between the two objects so that they are just resolved is called resolving limit, and for the eye it is 1 minute or 1/60 degree. One example is here. If a person wishes to distinguish between the two pillars, दो pillars अगर कोई व्यक्ति उनको अलग अलग देखना चाहता है and they are located at 11 kilometer, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पिलर. तो इनके पिलर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो व्यक्ति इन दोनों पिलर को अलग अलग देख सके. वी नो दैट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई इज़ 1/60 डिग्री, एंड इफ थीटा इज़ मोर देन दिस एंगल देन इट कैन बी सेपरेटेड. एंड सिंस एंगल इज़ आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस इज़ आर्क, दिस इज़ एंगल, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड एज रेडियस. Now D is the arc, 11 kilometers changing into meter. If this value is more than this, तो 1/60 डिग्री को हमने बदल दिया रेडियन में. And solving this you will get the distance D between the two pillars is more than 3.2. अगर distance 3.2 मीटर से ज़्यादा होगा पिलर के बीच का, तो हमारी आँखें उनको अलग अलग देख पाएंगी. Now a normal eye can see objects over a wide range of distance from 25 to infinite. हमारी जो नॉर्मल आइज़ हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक देख सकती हैं. दिस इज़ द रेंज ऑफ विजन फॉर द नॉर्मल आई. दिस इज द रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई, 25 टू इनफाइनाइट. बट a defective eye cannot able to see the object for such a wide range of distance. लेकिन जिसकी आंखों में कोई दोष है वो इस रेंज को क्लियरली नहीं देख पाएगा. Now what are the defects? Defects of eyes are myopia, means short sightedness, hypermetropia, long sightedness, presbyopia, and astigmatism. Now here we are comparing between the two defects called myopia and hypermetropia. If you see the diagram, the objects are very far because light rays are coming parallel, and the image formed before retina. Image retina के पहले बन रहा है. Means image formed before retina. This defect is called myopia. यहाँ देखें अगर light is coming parallel means very far from the eye and it is meeting behind the retina. retina के पीछे मिल रहे हैं ये. तो this defect is called hypermetropia. In this, image formed behind retina. Now what happened in these two defects we will see in the diagram. If you see this diagram, this is the figure showing defect myopia or short sightedness. See, this is PN, N for near point, and this is PF,
PF dash, this is dash, PF dash, F for far point, PF means far point, PN means near point. Now if you see this is a dash here, means the far point is come closer to the eye. जब फार पॉइंट इनफाइनाइट से कुछ आगे लाया गया तो जाकर के इस फार पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन रही है when the eye is in relaxed state. You see this is the far point of the defected eye. Now if the object is at the very far, if the object is kept at infinite, what will happen? If the object is infinite, the image formed at this point means not formed on retina as here, because here the far point is come closer, but here the far point is at infinite, and for defected eye the infinite, when the rays are coming they are meeting at here before retina, so we are not getting image on this retina. Means eye lens power more desired cannot further reduce by muscular action. मतलब कितनी भी कोशिश करके हम उसको लेंस की फोकल लेंथ को बहुत चेंज नहीं कर पाएंगे कि वो इमेज को यहाँ बना दें. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फार पॉइंट यहाँ पर आ गया था लेकिन फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है नॉर्मल आई के लिए, एंड द पर्सन जस्ट वांट टू बी एज अ नॉर्मल आई. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर यूजिंग द कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहे हैं. कॉन्केव लेंस की यूज़ करने से क्या हुआ, ये जो लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, जो कि बहुत दूर इनफाइनाइट रेंज से आ रही हैं, एंड दे डाइवर्जेस लाइट. ये कॉन्केव लेंस ने क्या किया, कॉन्केव लेंस ने इस लाइट को डाइवर्ज कर दिया और लेंस ने इसको फिर वापस ला के यहाँ पर मिला दिया रेटिना पर. नाउ दिस इज़ द इमेज. नाउ दिस इज़ अ न्यू फार पॉइंट फॉर द डिफेक्टेड आई. दिस कॉन्केव लेंस डज इट ब्रिंग द फार पॉइंट हियर, मीन्स वेयर द आई कैन सी. डिफेक्टेड आई जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को देख पा रही थी, इस लेंस ने उस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ बना दिया और इस इमेज ने इसके लिए एज ऑब्जेक्ट काम किया और इसको यहाँ पे इमेज बन गई इसकी. मीन्स दिस इज़ अ न्यू फार पॉइंट, दिस इज़ अ न्यू फार पॉइंट, एंड दिस फार पॉइंट इज़ हियर विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्केव लेंस. क्योंकि आँख इस किसी ऑब्जेक्ट को यहीं पर देख पा रही थी, तो आई लेंस ने क्या किया, इस कॉन्केव लेंस ने क्या किया, इस कॉन्केव लेंस ने उस फार ऑब्जेक्ट की इमेज को पहले यहाँ बनाया और इस इमेज ने इस आई के लिए ऑब्जेक्ट काम किया और इसकी इमेज यहाँ बना दी. दिस इज़ द रीज़न that why the concave lens we are using to make the image clear on retina. This is the new far point for the defected eye, and suppose this is the distance where the defected eye can see the object clearly, so we are saying the near sightedness, means the far point come closer, far point पास आ रहा है, इसलिए हम इस डिफेक्ट को बोलते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं. तो इस पॉइंट पर हमको आकर दिखता था. अब हम बार बार किसी को तो बोलेंगे नहीं कि पॉइंट यहाँ लेकर के आओ, तो हमने उसका चश्मा लगा लिया, उस कॉन्केव लेंस का चश्मा लगा लिया जिसने इस पॉइंट को यहाँ पे ला के रख दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा था. सपोज़ करो हमारी आँखों से यहाँ तक की दूरी 80 सेंटीमीटर थी, तो हमारे इस कॉन्केव लेंस ने क्या किया, इस कॉन्केव लेंस ने उस फार पॉइंट को 80 पे ला के रख दिया, तो हमारे इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर हो गई. Am I clear? This is the far point, new far point for defected eye. इस कॉन्केव लेंस ने उस फार पॉइंट को ला करके यहाँ रख दिया जो कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो हमारे इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, जो कि हमारे डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है. तो कहने मतलब ये है कि डिफेक्टेड आई का जो फार पॉइंट है वो हमारे कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ है. क्लियर? The next point is reason for myopia. Focal length or radius of curvature of the lens is reduced. Focal length या radius of curvature लेंस का घट गया होगा, कम हो गया होगा, या ये कह सकते हैं कि लेंस की पावर बढ़ गई होगी. किस लेंस की, आँख के लेंस की. तो ये कारण हो सकता है मायोपिया का. दूसरा कारण हो सकता है द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेज. आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई होगी, ये भी एक कॉज हो सकता है मायोपिया का. इसको दूर करने के लिए हमने इमेज में देखा था कि कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं. रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया जिसका रिवर्स है, फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस इंक्रीजेज
या पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेज एंड डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेज. हाउ कैन वी रिमूव इट? वी रिमूव इट बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस. नाउ एज वी सी इन द डायग्राम हाउ what is the focal length of the lens we use to remove myopia. The focal length of the lens used to remove myopia is same as the new far point. Suppose a person see up to a distance x and want to see infinite. x क्या है? x डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट है. तो कितना हम लेंस यूज़ करेंगे? इस फोकल लेंथ का हम यूज़ करेंगे कॉन्केव लेंस. तो दिस इज़ द न्यू फार पॉइंट. आई कैन राइट हियर न्यू फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टेड आई. डिफेक्टेड आई का ये नया फार पॉइंट है और कहाँ तक देखना चाहता है? इनफाइनाइट तक. तो कौन सा कितने फोकल लेंथ का चश्मा यूज़ करेगा? जितना उसका नया फार पॉइंट है. दिस इज़ द न्यू फार पॉइंट एंड दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस. सो अ पर्सन कैन सी अप टू डिस्टेंस x. x क्या है? x एक नया फार पॉइंट है डिफेक्टेड आई का एंड ही जस्ट वांट टू सी द डिस्टेंस y. और ये y तक देखना चाहता है. y कोई भी डिस्टेंस हो सकती है जो कि x से ज़्यादा है. तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. इस फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. एंड व्हाट इज x एंड y? y तक देखना चाहता है मीन्स y इज़ द इमेज, x इज़ द ऑब्जेक्ट. You replace it with a lens formula and you will find the focal length of the concave lens used to remove myopia. This is the formula you have to learn is. This is the figure which shows the defect hypermetropia in which Pn, n is the near point and n dash is the new near point for the defected eye. Clear? इसमें नियर पॉइंट दूर चला जाता है. नियर पॉइंट का दूर जाना, दूर चला जाता है, फार चला जाता है. इसलिए इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया में क्या होता था? मायोपिया में फार पॉइंट नज़दीक आता था, पास आता था, इसलिए बोलते थे शॉर्ट साइटेडनेस. यहाँ पर नियर पॉइंट दूर चला जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश द रीज़न बिहाइंड द नेम गिवन. फार पॉइंट, नियर पॉइंट दूर जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस. नाउ दिस इज़ द Pn नियर पॉइंट. डिस्टेंस इज कैपिटल D, least distance of distinct vision, and this is the new near point for the defected eye. This is indicated by small d. Now if the object is at near point and eye is defected, so what happen? The rays coming from the object and they are meeting behind the retina, and the eye lens का जो power है वो अब उसको और आगे नहीं ला पा रहा है. Means this is defected eye. If we use a convex lens to remove this, convex lens का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको दूर करने के लिए. Now rays is coming from the object and it become parallel, and after that when they fall on the eye lens they are meeting and the retina. The clear image is formed here. So by using this convex lens the defect is removed. And what happened here, if you make the ray backward you will get a image here, and this is the new far point. This is the new far point, sorry new near point for the defected eye. जिस पॉइंट पे रख करके ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर बन रही थी, यानी कि जब हम किसी डिफेक्टेड आई को देखें और वो अपने नियर पॉइंट को पीछे करके देख रहा है. सपोज़ करो कोई व्यक्ति किताब को पीछे रख के पढ़ रहा है, मीन्स उसने अपना नियर पॉइंट पीछे कर लिया. यहाँ पे उसको रख के साफ दिख रहा है तो वो यहीं पे रख के देखना चाह रहा है. तो चश्मा लगाया उसने कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या हुआ? उस चश्मे ने इस पॉइंट को यहाँ पे कर दिया. क्लियर? इस लेंस ने इस पॉइंट को पीछे कर दिया तो उसको फिर से यहीं पे दिखने लगा. तो दिस इज़ द रिमूवल ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. नाउ फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया. कितने फोकल लेंथ का हम लेंस यूज़ करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए? जैसा कि हमने फिगर में देखा अभी, अ पर्सन कैन नॉट सी बिफोर डिस्टेंस D. D इज़ अ न्यू नियर पॉइंट फॉर द डिफेक्टेड आई. ये D क्या है? ये डिफेक्टेड आई का नया नियर पॉइंट जो कि पीछे जा चुका है. एंड ही वॉन्ट टू सी द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट मीन्स
डी पर देखना चाहता है, लेकिन उसका नियर पॉइंट कहाँ पे चला गया है, पीछे चला गया है, यहाँ चला गया है। क्लियर? तो दिस इज़ द न्यू नियर पॉइंट फॉर द डिफेक्टेड आई एंड दिस इज़ द एक्चुअल नियर पॉइंट फॉर द आई. So the object should be at this place and he is comfortable to see this object. Now what the focal length he will use of the lens? U is minus d, V is minus d. तो लेंस का फॉर्मूला यूज़ करो आप, 1/v माइनस 1/u करो 1/f. ऐसे सॉल्व करके यू विल गेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिमूव टू हाइपरमेट्रोपिया, d इंटू डी अपॉन डी माइनस डी. ऐसे हम याद कर ले रहे हैं. ये d क्या है, ये d नया नियर पॉइंट है, ये d क्या है, ये d एक्चुअल नियर पॉइंट है. इन दोनों की वैल्यू अगर आपको पता है कहाँ से वो देख रहा है या वो कहाँ पे खिसका के देख रहा है, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको. और ये हमारा जो नियर पॉइंट है, एक्चुअल नियर पॉइंट. तो d इंटू डी अपॉन डी माइनस डी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यू कैन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now the next is presbyopia. Presbyopia is a defect in which near and far objects are not clearly visible. It is an old age disease and it is due to the loosening power of accommodation and it can be removed by using bifocal lens. Bifocal lens के चश्मे इस तरीके के होते हैं. नीचे हमारा convex है और ये concave है. This is for near and this is for far. Means myopia and this is for hypermetropia. The next is astigmatism. In this defect, eye cannot see horizontal and vertical line clearly. It is due to the spherical nature of the eye lens. Means उसका जो spherical shape है वो थोड़ा सा कम होने लगता है. इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है astigmatism की. And this can be removed by using cylindrical lens और toric lens जिसको बोलते हैं TORRIC toric lenses और cylindrical lenses. This is the term I am using here because maybe sometime asked in the question. इस पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कुछ नहीं आता आपके कोर्स में, बट ये है कि कौन सा लेंस यूज़ करते हैं टू रिमूव दिस एस्टिग्मेटिज्म. तो दिस इज सिलेंड्रिकल लेंस और टॉरिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव दिस डिफेक्ट कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म. नाउ इन द लास्ट अगेन कॉनकेव लेंस यूज टू रिमूव मायोपिक या कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं मायोपिया को दूर करने के लिए. एंड कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया. एंड इट आई वांट टू क्लियर वन थिंग हियर कि जो भी हम लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे इमेज को बड़ा नहीं कर रहा है. इट नॉट मैग्नीफाइज, इज जस्ट प्लेस द इमेज ऑन द परफेक्ट प्लेस ऑन रेटिना. मतलब कहने का ये है कि हमारा जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस हम जो यूज़ कर रहे हैं चश्मे में, वो हमारे इस इमेज को बड़ा नहीं कर रहा, कभी साइज़ में बड़ा नहीं कर रहा है ना छोटा कर रहा है. इट जस्ट making the position of the image on retina. And so object and image subtend equal angle to the eye. So a spectacle means जो हम चश्मा यूज़ कर रहे हैं. So the spectacle lens does not produce any magnification. ये बहुत important है कि चश्मे का लेंस मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही एंगल आँख पर बनाते हैं, इस वजह से उसका मैग्नीफिकेशन ज़ीरो रहता है. देयर इज़ नो मैग्नीफिकेशन.